Heartbreak. Your life, business, career, everything, comes into stake when you have a heartbreak. You are blind. क्योंकि that XYZ person is, your support system बोल लो या आपको एक आदत पड़ गई होती है. Just before we discussed about validation. इनके validation किसी एक person के validation की इनको आदत हो जाएगा. And when you have heartbreak, that validation moves. तो आज हमारे साथ है लज्जा ब्रह्मभट्ट जो कि फाउंडर है नीरा नेचुरल्स के. तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ नीरा नेचुरल्स और उनकी जर्नी क्या रही थी. तो हाय लज्जा. हाय सौम्या. तो सबसे पहले आप हमें आपका थोड़ा बैकग्राउंड बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था. तो विल टेल यू फर्स्ट अबाउट नीरा. तो हमने 2021 में शुरू किया था. 2021 जून. हम 2 साल के हो जाएंगे अभी नेक्स्ट मंथ. So we are basically into handmade bathing luxury. तो to simplify it, handmade मतलब जो प्योर तरीके से बना हुआ था, जिसको बनने में 45 डेज का एक लॉन्ग प्रोसेस है हमारे सोप्स को. एंड इट इज़ नेचुरल. उसमें कोई भी SLS पैराबेन नहीं है, कोई भी केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं विच आर हार्मफुल टू योर स्किन. इट इज़ ऑर्गेनिक एंड इट्स अ वेजिटेरियन. सो देयर इज़ नो एनिमल क्रुएल्टी भी किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे में नहीं है. And it is luxury because of the amount of ingredients जो use होते हैं. They are very pure, they are very organic, they are of high end quality. और जो एक पर्पस के साथ आता है कि भाई आपने कुछ भी लिया तो एक पर्पस उसका फुलफिल होता है. मोस्ट ऑफ आवर सोप्स आर डिज़ाइंड इन अ वे कि जो हमारी इंडियन स्किन टोन्स होती है, इंडियन प्रॉब्लम्स होती है, जो उसी के रिलेटेड हमने सारे सोप्स डिज़ाइन किए हुए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सब भूल जाते हैं कि नहाना सबसे ज़रूरी होता है. और स्किन केयर में नहाना इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप. सुबह उठ के ब्रश करके विल गो एंड देन यू विल गो फॉर योर स्किन रूटीन्स और एवरीथिंग. और ऐसे भी लोग होते हैं मेरे जैसे कि जिनको स्किन रूटीन करने में भी मौत आती है कि भाई आई एम जस्ट आई हैड माई शावर एंड आई एम गुड टू गो फॉर द डे. सो वी क्राफ्टेड दिस थिंग इन टू कीपिंग दैट इन माइंड. एंड लग्जरी कैटेगरी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ जो मेहनत लगती है. एज आई सेड 45 डेज सोप्स को बनने में मेहनत लगती है. So that is why we come into India's first handmade bathing luxury brand. That's Neera Naturals, and we started with soaps. Now we have lip balms, we have bath salts, we have wax powder, and so many other things are going to come into it. Yeah. And what about you, like from where you have started? So my story is a little bit not weird, but it's very funny because I thought that graduation के बाद I'll get married. And by the time I completed my graduation, तो सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा. तो I did my LLB, I did MBA HR, and I did few jobs, but very good jobs I did. मेरे boss, मेरे mentors जो थे, they were very fantastic persons. So I learned a lot from my job journey also. And yeah, pretty much. And then COVID हुआ, lockdown, we all came into the lockdown scenario. So pretty much my bosses were fantastic people around me. I was one of those luckiest employees के जो अपने mentors से बहुत कुछ सीखे. And then COVID hit us. Jobs बंद, सब कुछ बंद. और मैं बहुत clear थी about doing business. And further the thing was कि my mom is cosmetologist. So she is into skin. तो उनका एक शी हैड दिस ड्रीम कि ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे. और वो US में प्रैक्टिस करते थे. बट शी केम बैक एंड we thought of starting something like this, and that's how we did it. Like 1 साल तो पूरा ट्रायल एरर एक्सपेरिमेंट्स जाता है, किस पे जा रहा है किस पे नहीं जा रहा है. एंड सारे प्रोडक्ट्स हमारे CEO अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं जो मुझ पे ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं. If I say approval, then we go out. Your mom is the CEO of the company? Yeah, my mom is the co-founder. She looks after the production part. I have my cousin also involved with me. She looks after everything, like जो भी back end help चाहिए होती है मुझे, she is the one who helps me out for doing everything. And then I am the one who looks after the market, who looks after the sales, every other thing. It's basically I am the muse of my company, but my mom is the backbone of my company. Yeah. तो आपने जैसे बता कि marketing and sales and everything you manage it. Yeah. So how did you learn those? My jobs. My jobs have helped me a lot. The last 2 jobs which I had, like I was promoted as a business development manager. So BDM का तो काम ही वही होता है, to talk to people, to increase the sales, to collab with different companies. The targets. Complete the targets, give the targets, be bossy.
I loved that journey as a BDM. And then sooner I became the vice president marketing and legal advisor. So my job involved around, marketing and sales kind of thing only. I learned a lot, although I hated marketing and sales. Like, I'm one of those person जिसको बात करने में भी मौत आती है किसी से कि मैं बात ही क्यों करूँ मुझे नहीं करनी है. But God always has a different plan, and that's how I become. बट आई थिंक कोई भी जॉब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बात तो हाँ, करनी ही पड़ती है. And yeah, eventually you need to get out of your comfort zone. आपको बात करनी पड़ेगी, आपको public appearances करने पड़ेंगे, जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है वो शायद करनी पड़ेगी. बट इट्स ओके, इट्स अ जर्नी. फिर सीखते भी हो, कभी कभी मज़ा भी आता है, ट्रायल्स होते हैं, एरर्स होते हैं. इट्स ऑल अ जर्नी. तो आपने वो कैसे मैनेज किया आपको मौत तो अभी भी आती है पर आई डोंट नो द थिंग्स इवेंचुअली थिंग्स फॉल्ड इनटू प्लेसेस. जब नीरा शुरू हो रहा था तब वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड कि तुम अपना अकाउंट भी पब्लिक करो बिकॉज नाउ यू बिकमिंग द म्यूज ऑफ द कंपनी. द इंस्टाग्राम अकाउंट है बिकॉज आई वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन. ज़्यादा लोग तामझाम नहीं पसंद आता. He said कि भाई प्राइवेट पब्लिक कर दो because you will represent your brand and people needs to know, and that's how everything works today. you connect with People, yeah, and that's how you sell. It's as simple as that. I did that, and then कर तो दिया. तो उसमें भी डालना पड़ेगा. You have to keep engaging yourself. But yeah, my cousin helped me a lot. My family helped me a lot. My friends के भाई do this. बाकी मैं तो oh please get out. ऐसे ये सब मुझसे नहीं होता है. Yeah. तो जैसे मैंने आपने बताया कि इंस्टाग्राम पोस्ट आप रखते हो तो मैंने वहाँ पर देखा है कि आप जीयू सेक में से फ्रॉम आर प्रेसिडेंट Yeah. गवर्नर Yeah. एंड See you. यस सीएम ऑफ गुजरात उनसे आपका अवार्ड भी मिला है Yeah. जो कि नीरा नेचुरल के रिलेटेड Yeah, so उनका इनिशिएटिव था हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया उनको अवार्ड्स देने वाले थे. Yeah, for the journey. It's sort of a national award you can say because you're getting it from the president herself. So it was like that, and that also had a very funny story because award ceremony was on 4th October and 28th September को हमको बोला था कि मुझे बोला गया था कि भाई आपको अवार्ड मिल रहा है. And you were like, okay, होगा. And they specifically said that it is once in a lifetime opportunity. And we have so many startups with us, but you are the first startup जो इतनी जल्दी आया हुआ है and who is into the early revenue stage. हाँ, early revenue stage पे. तो said होगा. Again, you don't get कि you getting it from the president of India. आपको क्या ही लगेगा कि कोई minister, like everybody has their respect, but you will not think about the president, right? Was it a surprise? It was. And we were not knowing. And then 2nd of October, I remember the day specifically, me and one of my friends were sitting somewhere and we were discussing about certain things. And एक email pop हुआ. email pop हुआ तो it's a geo set. Then तो मैं पहला वो उनका email पढ़ती because we have so many daily updates उनके साथ होते हैं. तो मैंने पहले ही open किया. And then everything was written that you will be felicitated by the president of India, Srimati Draupadi Murmu, and the governor of Gujarat and everything. तो मैंने 3 बार refresh किया है. I'm like, I've not done anything. Yeah, I've not done anything. Because what happens generally, ITs वाले, agriculture fields वाले, biochemical वाले, people who are helping out, उनको preference होते हैं और होने ही चाहिए, I guess. और मेरा नीच तो पूरा अलग था. I am the way luxury and beauty, दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से. I scrolled and like 3 बार refresh किया and then उनका call आया कि भाई this is the thing. And I said, are you sure? बोलते हाँ, we are sure you are getting. I said no. तो बोलते what no? You are getting. I said I've not done anything. बोलते but we as a the geosec being an incubator, we know what you are doing. तो again I was into shock. बोलते कल आना है because president awards होते हैं तो there are certain protocols which you have to follow. तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं एंड एवरीथिंग एंड रिहर्सल्स होता है तो वो एक दिन पहले सिखाया जाता है व्हाट टू वेयर टू स्टैंड एंड एवरीथिंग. एंड तब तक मैंने घर पे नहीं बोला बिकॉज आई थॉट अगर नहीं मिला तो मेरा कचरा हो जाएगा. इट्स बेटर आई विल कन्फर्म देम टुमारो एंड देन वी कैन गो अहेड.
But my brother came to know. I went मैं जब घर पे तो बोलता है ऐसा मुंह क्यों अजीब you look like a shock state of you lost. Is there something we should know like कुछ लड़के का मैटर है, you got proposal something like that. I'm like no, this is I don't know what to say. And I said him, okay, don't tell anyone, but this is the email. Just this is the email. Read it out. बोलते आर यू रियलाइजिंग इट व्हाट इट इज? ऐसे नहीं, आई नो, पता है मुझे क्या हो रहा है और मेरे शक्ल पे 12 बज चुके हैं, अब मुझे नहीं बोलना है कल तक किसी को जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाती. एंड देन दूसरे दिन आई हैड माय रिहर्सल्स एंड देन आई केम बैक होम एंड सब बैठे थे एंड आई सेड कि भाई या दिस इज गोना हैपन. तो पहले तो कोई एकदम ऐसे शॉक में ही चले जाते कि, एंड ऑफ कोर्स देन इट्स प्राइड मोमेंट होता है कि फैमिली में से इन माई एंटायर कम्युनिटी शायद 10-12 साल में मैं पहली हूँ जिनको मिला है. तो एवरीबडी वॉज इन शॉक स्टेट ऑफ माइंड. आई कॉल्ड माई मदर, मम्मी को फ़ोन किया एंड मैंने कहा मम्मी आई हैव अ गुड न्यूज़. तो बोलते नीरा नेचुरल्स को बहुत बड़ा बोलता है ना वो, अब क्या बोला था उसने, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कोई असाइनमेंट मिला है. आई सेड नो, दिस इज समथिंग बियॉन्ड, लाइक दिस इज समथिंग बियॉन्ड जो उससे भी तुमको खुशी नहीं मिलने वाली है. बोले व्हाट इट इज? I'm being felicitated by the president of India. तो वो 10-15 सेकंड का पॉज हो जाता है ना, तुमको पता नहीं चलता हाउ टू रिएक्ट. एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग. इट वाज सो फनी. सिनेरियो पूरा घर पे क्रिएट हो गया था. एंड दूसरे दिन वेंट फॉर द सेरेमनी. साड़ी पहननी थी तो तैयार होना पड़ता है. अगेन मौत आ रही थी सुबह उठ के, साड़ी पहननी है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू डू दिस. बट इट वेंट आउट गुड. लाइक दिस वाज होल स्टोरी के जहाँ पे ऐसा हुआ था. नोबडी इन माय फैमिली, एवरीबडी वाज शॉक्ड कि भाई चलो समथिंग. But then they knew I'll do something good for myself. But ये नहीं पता था इतनी जल्दी something good for myself हो जाएगा. Yeah. 1.5 year to be precise. Just 1.5 year से भी short span of time. और ऐसा हो गया. तो मतलब you don't realize as a startup कि what you impact आप छोड़ रहे हो. आप अपना काम किए जा रहे हो पर आपको नहीं पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है. नहीं पता होता. किसी भी स्टार्टअप को नहीं पता होता. So why they have chosen me? I don't know. I still ask them कि मैं ही क्यों? But they had a very the VP of GUSEC में भी बहुत सारे स्टार्ट. yeah, and from a very long time. आजकल के नहीं, from a very long time. And मुझे तो उनके साथ जुड़े हुए उस टाइम पे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था. 1 साल मेरा अभी पूरा हो रहा है उनके साथ. 6-7 महीने. I said, I asked my वहाँ के जो VP है, मैंने उनसे पूछा. I said, what have I done? Why are you giving me this? Well, you are stupid. Why are you asking such nonsense questions? बिल्कुल कि I'm being VP. I'm being, looking after all the startups and going through their journey. If I'm so sure that I have to give it to you, or your name should be present there, then of course we have seen something in you. I said, but मैं बहुत जल्दी हूँ. तो बोलते कोई जल्दी लेट नहीं होता है. It's about the impact which you are living. It's about the because I joined them when मेरा अर्ली रेवेन्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. आई गॉट माई GST, आई गॉट माई MSME. तो मैं बोलता ना अर्ली रेवेन्यू स्टेज पे ऑलरेडी अभी भी हूँ कि भाई मेरा रेवेन्यू शुरू हो चुका है. आई एम नॉट इन टू दैट ट्रायल एंड टेस्टेड वाला फेज नहीं है मेरा. रेवेन्यू शुरू हो चुका है. एंड फर्दर द थिंग दे विच अट्रैक्टेड देम वाज हाईलाइटिंग बेदिंग लग्जरी, इंडियाज फर्स्ट हैंडमेड बेदिंग लग्जरी बिकॉज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. एंड इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता ही नहीं. नेचुरली बहुत सारी चीज़ें. इट्स जस्ट वी डोंट वांट टू यूज़ आवर नॉलेज. और हमको ऐसा ही लगता है कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा वो. We just copy paste. We just copy paste. Why do we need to copy paste? We don't need to. We have so much resources with us. Why not to utilize? So that's what they thought about So let's find it out कि क्यों उन्होंने आपको चूज किया. and I still ask them why me, because मैं तो बहुत, मुझे 6 महीने हुए थे उनके साथ इंक्यूबेट हुए. और मैंने कहा 6 ही महीने हुए हैं, why you want me to be there? Like पहले तो ले लिया, फिर कुछ ऑफकोर्स ले ही लूँगी पहले. एंड देन आस्क देम कि भाई मैंने क्या किया. आई आस्क्ड माय वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर, तो तुमने किया. एंड मी बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, इफ आई कैन सी तुमने किया है, तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो कि इतने व्हाई आर यू सेल्फ सबोटाजिंग योरसेल्फ, क्यों इतने सवाल पूछ रहे हो? ऐसे यार क्या, बट आई नीड एन आंसर. सो ही सेड बिकॉज वी चोज प्रोफाइल्स हु वर वेरी डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं. एंड यू केम आउट, यू पॉप्ड आउट एज समवन हु इज इनटू बेदिंग एंड एवरीथिंग. Plus resourcing everything from India, made in India, the process of your soaps, it's very natural, everything is very natural.
everything is time taking process and you know it takes a lot of patience. प्लस इंडिया में इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं बट वी डू नॉट यूटिलाइज दैम, हमको समझ नहीं आता, वी आर जस्ट यू नो वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हम पे इतना ज़्यादा है कि हम हमारे आजू बाजू की चीज़ों को ही भूल जाते हैं कि यार बेसिक चीज़ें तो हमारे, हाँ वी वांट वैलिडेशन फ्रॉम देम कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे वहाँ से वैलिडेशन चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो मतलब या बोथ मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट, या वेरी डिफरेंट, कि वहाँ पर जो चलेगा जरूरी। बट अगेन वहाँ पे the only problem in Indian market which I think is when I say that my soap range starts from 300 to 1250, it's expensive, I understand, but then there are other soaps also which are way more expensive than this. Why it is expensive? If somebody will read the story process समझेगा तो उसको आइडिया आ जाएगा कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, 45 डेज का प्रोसेस होता है। What is the exact process? Can you tell us from start? स्टार्टिंग इट्स लाइक वी सारे ऑयल्स इकट्ठा होते हैं, सारे फैट्स जैसे कि यू नो बटर्स हो गए, डिफरेंट बॉडी बटर, शिया बटर हो गया, कोको बटर, You are telling process of सोप, या आई एम टेलिंग द प्रोसेस ऑफ सोप्स, तो उसको सब मिलता है एंड देन जो बेस इंग्रेडिएंट होता है, जो फ्लेवर होता है उसका नेचुरल फॉर्म लेता है। फॉर एग्जांपल इट्स चॉकलेट, तो यू गेट अ गुड क्वालिटी कोको पाउडर, यू नो दैट चॉकलेट जो 25 और 45% अबव कोको होता है, 100% कोको पाउडर्स होते हैं, वो नहीं लेने होते हैं। उनके बटर्स इमल्सीफाई, सब इमल्सीफाई करके एक प्रोसेस होता है, उसको मेल्ट करना होता है एक पॉइंट पे, वो मेल्ट होता है, उसके बाद उसको मोल्ड्स में सेट करने के लिए छोड़ना होता है। अब वो मोल्ड्स में सेट होने में उसको 4 या 5 दिन लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अगर विंटर्स है तो 2-3 दिन में भी हो जाएगा, समर्स एंड मॉनसून इट टेक्स अराउंड 4 to 5 डेज। 4-5 दिन के बाद वो अनमोल्ड होता है, उसको कट करना होता है एंड देन उसको एक टेम्परेचर पे, दैट इज़ अ रूम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं ना, उसको छोड़ देना होता है। जस्ट लाइक अ वाइन, कि एक वाइन को एक प्रोसेस होता है बना के उसको छोड़ देना पड़ता है, उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है। बिकॉज इट्स ऑयल्स एंड बटर्स, तो एकदम से आप यूज़ नहीं कर सकते, वो छूट जाएगा, वरना उनको एक टाइम चाहिए होता है कि टू सैचुरेट द अमाउंट ऑफ फैट। और उस प्रोसेस में यू रियलाइज कि उसका एक्चुअल कलर आया है या नहीं आया है, या पूरा कलर बिगड़ गया है, ये सब चीज़ें उस स्टेज पे पता चलता है। आपके पास ऑलरेडी प्रोसेस डिफाइंड है, फिर भी ऐसा हो सकता हाँ हो सकता है, है? हाँ हाँ ना भी बने, बिकॉज जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने कब बोला, अगर हम किसी फ्रूट पल्प से बना रहे हैं या फ्रूट जूस से बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव पपाया कीवी, तो कभी कभी अगर पपाया ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो पूरा पीएच बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा कलर अलग हो जाता है एंड देन यू कैन नॉट कीप इट। तो कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि पूरा बैच ही बिगड़ जाता है एंड यू नो वी हैव टू थ्रो इट और वी हैव टू यूज़ इट, जस्ट उसको रख नहीं सकते मार्केट में। तो ये सब चीज़ें होती है। प्लस हैंडमेड होता है, इसमें किसी भी चीज़ में मशीनरीज जाती नहीं है, इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड प्रोसेस। तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव बिकॉज रिस्क बेयरिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है कि अगर वो नहीं निकला जैसा हमें चाहिए तो वी हैव टू थ्रो इट अवे। तो कितना परसेंट में प्रोडक्ट होता है कि जो प्रॉपर फॉर्म में आउटपुट मिलता है उसका? एज इन एज इज मतलब कि आपने 10 सोप्स के लिए हाँ रखा होगा, हाँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो परफेक्ट ही बनेगा? मतलब 10 में से 5-6? नहीं 10 अगर परफेक्ट है तो पूरा का पूरा परफेक्ट है, नहीं है तो वो पूरा का पूरा नहीं है, नहीं है। अगर प्रॉपर बन रहा है पूरा बैच, अगर मान लीजिए मैंने 4 किलो का बैच निकाला विच इज अराउंड 40 सोप्स, तो परफेक्ट निकले तो सारे के सारे परफेक्ट निकले, नहीं निकला तो सब कुछ गया, एक भी नहीं निकलेगा। एंड प्लस एज आई सेड उसको एक जगह पे छोड़ देना पड़ता है फॉर 1 मंथ 1.5 मंथ, क्योंकि वो प्रोसेस होता है, जब तक वो उसके सॉलिडिफिकेशन, हाँ प्रॉपर नहीं होगा, वो पीएच बैलेंस नहीं आएगा, इट मे बी हार्मफुल टू योर स्किन, बिकॉज अगर ऑयल्स अलग हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए यार। Okay. तो ये आपने बोला कि हैंडमेड है, तो ये कौन बनाता है? माय मम, शी इज़ अ co-founder एंड शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो जो भी कुछ फॉर्मुलेशंस है, जो भी रेसिपीज़ है उनकी है, तो शी लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन पार्ट एंटायर, वही देखते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है, हम में से किसी का भी। इवन इफ मैं बोलूँ कि ये थोड़ा कम डालते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा, ये यू नो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो बोलते नो वी आर नॉट डूइंग दिस, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है, महंगा जा रहा है तो इट्स फाइन, आई डोंट केयर, और उसको उसी स्टैंडर्ड वे में ही जाना है, इन अ बेटर वे। तो आपने अलग अलग फॉर्मूला डिफाइन हाँ 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 यस, वो मेरी मम्मी को ही पता है, वो हम में से किसी को नहीं पता है। या ग्रेट। या तो फिर ये जैसे आपने प्रोडक्ट आपके पास गए, फिर आप मार्केट में गए, तो पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स था, कि उनको कैसा लगा? पहले तो 6 महीने कोई सेल्स भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज जस्ट यू नो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे, यू नो कांस्टेंट चल रहा है,
ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव क्लिक्ड समथिंग. बट देन स्लोली ग्रेजुअली वी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वी टाइड अप विद गुड 2-3 इन्फ्लुएंसर्स. पता चला लोगों को कि भाई व्हाई इट इज़ हैंडमेड, व्हाई इट इज़ एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग. वो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता है, बिकॉज इट्स अ टारगेटेड नीश एंड इट्स अ डेली थिंग. ये कोई एक बार परचेस करके आपने छोड़ दिया वाली चीज़ नहीं है. इसको आपको 2-3 बार यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके व्हाई दिस इज मच बेटर. एंड वी आर सो श्योर कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस, यू आर नॉट गोइंग बैक टू योर सोप्स. नो, तुमको फायदा ही नहीं, बिकॉज योर स्किन विल बिकम सो गुड, सो प्लम्पी, सो नेचुरल कि आपको लगेगा कि नहीं, अब तो वो 20-30 रुपए वाले नहीं, वी आई एम फाइन विद दिस बिकॉज दिस इज गिविंग मी द पर्पस. ऐसा. ओके, तो ये जो आपने बोला नॉर्मल सोप और इनमें वो क्या है ऐसा मेजर डिफरेंस? बहुत मेजर डिफरेंस होता है. जो नॉर्मल सोप्स जो मार्केट में मिलते हैं, उनका एक पूरा का पूरा डाई होता है. इट्स अ बेस रेडी. यू जस्ट हैव टू ऐड द फ्लेवर्स एंड यू हैव टू गो. उसमें कोई ऑयल्स नहीं होते. व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल ऑयल्स, एंड टेक्निकली दे आर नॉट इवन कंसीडर्ड एज सोप्स. सोप्स आर नेचुरल, एक नेचुरल वे में बनते हैं. उसका एक टाइम होता है, वो आपको टाइम देना पड़ता है. ये जो हम देखते हैं, इट्स अ बिग थिंग. वो एक बोला ना, एक दे जस्ट हैव अ डाई, यू पुट इंग्रेडिएंट्स एंड यू गेट इट आउट. एंड वो इंग्रेडिएंट्स बहुत कम अमाउंट में डालते हैं. वो दिखता है कि भाई रोज पेटल्स डाले हुए हैं, बट यू इमेजिन 1 kg के अंदर थोड़ा सा ही गया होगा, वो ज़्यादा जाएगा भी नहीं. विल नॉट गेट दैट. एंड प्लस व्हेन इट्स नेचुरल, तो उसमें हर तरीके का नेचुरल चीज़ें ही होता है. हाँ, पूरे का. तो जैसे आपने बताया कि 6 months तक आपकी सेल्स नहीं हुई थी, सो व्हाट मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस? क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाता है बट जल्दी जल्दी आउटपुट्स अगर नहीं मिलते हैं तो बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं, बंद हो जाती है. ज़्यादातर स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं. Early success is a scam. Let's be very honest. वो बहुत गिमी की बात है कि तुम जल्दी 2-3 साल में, आई हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड के 3-4 साल में इतना ऊपर जाते हैं, फिर उनका जब डाउनफॉल भी उतनी स्पीड में ही होता है. बिकॉज एज आई सेड, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम. तुमको बस वो गधों की तरह भागना होता है कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल. नोबडी नोज व्हाट इज सक्सेसफुल मीन्स. लाइक सक्सेस का मतलब क्या है, अलग अलग थिंकिंग होती है. ऐसे हाँ, ये होता है कि जब आपका सेल्स नहीं होता, यू फील डीमोटिवेटेड, यू फील लाइक क्या करें क्या करें क्या करें. वैलिडेशन, हाँ, भले किसी एक का भी नहीं मिल रहा, लाइक एक भी गया एंड दैट पर्सन सेड इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, देन यू फील लाइक आई वांट टू डू. हाँ, लेट्स गेट इनटू इट. What kept me going was okay, I'm a very spiritual person. I'm into completely Krishna conscious person. मैं गीता पढ़ती हूँ, so I've learned that thing that results are definitely not in my hand. What I have to do is I have to keep trying, keep trying, keep trying, keep trying, keep trying. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मुझे मज़ा आ जाएगा. एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे सेल्स नहीं भी हो रहा होगा ना, तब मुझे मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई एम enjoying it. Like this is the entire process. And what I used to think कि नहीं गया तो नहीं गया, हम ना लेंगे, I'll give it to my friends, who cares, like you don't care. Plus this is not the only thing जो मैंने और चीज़ सीखी कि हम क्या करते हैं, हम सारे रास्ते बंद कर देते हैं when we are into business, और उसको हम एक ब्रेड बटर का जरिया ही बना देते हैं. Don't do it. जब तक आपका जॉब चल रहा है, जब तक आपका कुछ साइड हसल चल रहा है, इसको भी चालू रखो. जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो कि दिस इज एट द हिट मोमेंट, देन लीव दैट थिंग. बट ऐसी बेवकूफ़ी मत करो कि भाई सीधा ही छोड़ दी जॉब और फिर दूसरे दिन से यहाँ पर स्टार्ट किया, तीसरे दिन से सेल शुरू हो जाएगा. दैट्स द आइडियल स्टोरी में. हाँ, मे बी, बट इट्स नॉट. इट्स लाइक वो एक बबल क्रिएट करके रखते हैं हम सब, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट सोशल मीडिया थिंग वेर पीपल आर टेलिंग द सक्सेस स्टोरीज, nobody wants to talk about their failures कि हमने क्या क्या किया. और शायद उन्होंने बात की भी सही अपने फेलियर्स की, बट nobody wants to concentrate स्टोरी. जो तक मैं आगे बढ़ भी, बट नहीं. हाँ, बैकग्राउंड तो पता ही नहीं है कि 20 साल होगी से उसके बाद 21वां साल है कि जब प्रॉपर ही उसका. Yeah, nobody knows it, right? Nobody wants to talk about that also. सबको बस वो सक्सेस दिख जाता है, and then they want to be the next entrepreneur and everything. And so as again I said that हमने ना बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को ना बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, बहुत that kept into that category where you are being treated as a celebrity, something like that, or everybody wants to be entrepreneur now. If you have patience, if you can
keep that baraf ka silla over your head and keep calm and ready to be criticized, ready to be poked, ready to be taunted, ready to do everything. and listen everything. और वो बोलते हैं ना, बैठ के सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, एक पॉइंट आएगा जब तुमको वो सब कुछ लगेगा कि हाँ, दिस इज द टाइम वेयर आई लिव्ड माय लाइफ। व्हेन आई गॉट माय प्रेसिडेंट अवार्ड, तो वो मेरे लिए वो वैलिडेशन था, मेरे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन था कि भाई आई हैव समथिंग, तो ही उन्होंने मेरे को दिया है। और क्यों दिया है? इफ दे हैव सीन समथिंग समथिंग उनको लगा होगा कि भाई नहीं, तो कल उठ के अगर ऐसा भी होता कि इफ आई हैव टू शट दिस डाउन कंप्लीटली, तो मुझे आई वोंट फील बैड, क्योंकि मुझे एक ऐसा वैलिडेशन मिला है जो शायद किसी को नहीं मिला है अभी तक। Maybe you can do something else. और मैंने सीख लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एनीवे अबाउट ट्रायल्स एंड एरर्स, हिट एंड मिस वाली हर चीज करनी पड़ेगी, वरना फिर कोई एग्जैक्ट क्या सॉल्यूशन है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो भी बिजनेस है वो कोई सोल्यूशन दे। इट्स नॉट नेसेसरी। लेट्स सपोज टॉकिंग अबाउट लग्जरी, मर्सिडीज भी चलती है एंड मारुति भी चलती है, राइट? बट Mercedes is Mercedes because it's a status symbol. It is considered that way. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप बोलो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ हो। Sometimes it can be about luxury. Sometimes it can be about making your self feel good. Why not? And I kept that thing कि भाई नहीं, spirituality has helped me a lot, और a lot से भी ज़्यादा। My depression phases, my ups downs, everything. तो मैं उस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर सकती थी और ओके, जाने दो कर। सो आप रोज स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो? हाँ, my way of spirituality, practicing spirituality is a very different thing. I'm a Krishna conscious person. मैं कुछ भी करूँ उससे पहले आई एम लाइक, लिसन, मैं आपके कहने पे कर रही हूँ, आप जानो, मेरा हो गया, आई एम गोइंग। अब आके क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम एंजॉइंग माई वर्क। मुझे नहीं पता क्या करने वाले हो, आप करते रहो। दैट्स हाउ आई प्रैक्टिस माई स्पिरिचुअलिटी। आई सरेंडर माई सेल्फ, not in a very gimmicky manner, not gimmicky but not completely, because I am a social animal also. I have to look after family, friends, everything. मैं बिल्कुल वैसा भी नहीं करती, बट आई कीप माई सेल्फ कि हाँ यार, आप जो करवा रहे हो जिससे सही होगा मैं कर रही हूँ, इट्स गुड फॉर माई सेल्फ, दैट्स हाउ आई प्रैक्टिस माई स्पिरिचुअलिटी एंड आई कीप माई। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल, कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा पता चलता जाएगा। डीप डाइविंग या डीप, आप अपने आप को समझ जाओगे, एंड दैट डे जब आप अपने आप को समझ जाओगे, देन यू विल नॉट केयर व्हाट अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव इज। यू विल नॉट केयर, बिकॉज आपको बाहर जाओगे तो ऐसे लोग भी मिलेंगे कि ये सब क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, गेट अ जॉब, यू हैव अ डिग्रीज, यू गेट अ गुड जॉब, क्यों आई वांट टू हसल हसल हसल, बट इट्स यू, नोबडी नोज योर। डेफिनेटली, जितने मुंह इतनी बातें तो वो सबकी अगर सुनेंगे तो फिर अपनी नहीं सुन पाएंगे। वो तो लाइक इफ वी टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री, तो बेचारे कृष्ण भगवान को भी क्रिटिसाइज करते थे, वो अर्जुन को भी। आज तक आई हैव सीन पीपल क्रिटिसाइजिंग अर्जुन वेर ही वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी, बट ही इज स्टिल बीइंग क्रिटिसाइज्ड। पीपल आर गोना क्रिटिसाइज, लेट इट बी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे आर नॉट एट योर लेवल, इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपसे ऊपर और आपके सेम लेवल का जो इंसान होगा वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज करने वाले वो ही होते हैं जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एंड हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। बट देन देयर आर पीपल हु आर लाइक कुछ भी नहीं किया और फिर वो आपको ज्ञान देने आ जाते हैं, तो हाँ हाँ करके छोड़ देना चाहिए उनको। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपको ऐसी कौन सी बिगेस्ट चैलेंज लगती है जो आपने फेस की हुई हो इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस? आपका जो भी प्रोसेस रहा था उसमें आपने कोई एक ऐसी बिगेस्ट चैलेंज फेस की हो, या तो फिर इन टर्म्स ऑफ जनरल लाइफ कि जहाँ पर आपको लाइफ और बिजनेस को दोनों को Heartbreak. Life, business, career, everything, comes into stake when you have a heartbreak. You are blind. क्योंकि that XYZ person is, your support system बोल लो, या आपको एक आदत पड़ गई होती है। Just before we discussed about validation, उनके validation, किसी एक person के validation की हमको आदत हो जाए। And when you have heartbreak, that validation goes. You become like, अब क्या, like my entire life was revolving around this. Like I planned everything, my life was planned as per XYZ person,
उनको जो अच्छा लगता है उनका ये वो। एंड एज अ फीमेल इट बिकम्स मोर फॉर अस कि यार मुझे सब कुछ करना है पर घर भी संभालना है, इस इंसान से शादी करनी है, हाउ विल आई मैनेज। एंड देन अगेन बीइंग अ फीमेल यू आर अ मल्टीटास्कर, आप मैनेज भी करना सीख रहे होते हो और उस प्रोसेस में आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, लाइक शैटर्ड। अब क्या, यू आर एवरीथिंग अप्स डाउन्स, आपने सब कुछ प्लान किया होता है, वो एक ही मिनट में इट वैनिशेस अवे, यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड दैट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट व्हेन यू आर नॉट ग्राउंडेड, जब आप अलाइंड नहीं होते। दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टू वो पेन को फील करने दो, उसको टाइम दो, वो अपने आप हील हो जाएगा। बट उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि उसको आप सर पे चढ़ने दो, सर पे चढ़ जाता है तो यू यूज तो स्पिरिचुअलिटी के कारण हम प्रॉबेबली न्यूट्रल हो जाते हैं, या एक्सट्रीम सिचुएशंस में Yes. हम जीना पसंद नहीं करते, यस यस यस। अगर खुशी भी हो या दुख भी हो। आप एक टाइम तक उसको फील कर लोगे, देन यू विल गेट अप एंड यू विल स्टार्ट वॉकिंग, या नॉर्मल स्टेट पे आ जाओगे, वो आपको हेल्प करता है। टू टेक बेटर डिसीजन। एटलीस्ट यू नाउ यू नो व्हाट यू डोंट हैव टू डू। आपका फेलियर या आपका हार्ट ब्रेक जो भी बोलो, वो आपको इतना तो सिखाता है कि ये नहीं करना है, करना है वो सब सिखाते हैं, बट ये नहीं करना है वो सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। तो हार्ट ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई से दिस टू पीपल, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक आप अपना वर्थ रियलाइज नहीं करोगे। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर लकी पीपल जिनका हार्ट ब्रेक नहीं होता है, दैट्स फाइन विद देम, बट देन देयर आर मल्टीपल पीपल्स लाइक अस, एंड उसमें से आपको निकलना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं निकलते तो इट्स लाइक यू आर पॉइजनिंग योरसेल्फ, या वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने फैमिली का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आजू बाजू इतनी टॉक्सिसिटी फैलाए जा रहे हो कि ना तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो ना करने दे रहे हैं। तो वो समझ जाओ जितना जल्दी कि ठीक है हो गया। अब ऑफ कोर्स यू हैव इमोशंस, it took me 2 years to move on, like 2 years to move on, and then I decided okay, this is it, I'm not looking back after this, and that's when I decided कि okay, this is the time where Neera should be started। अब इसको हम डिले नहीं करेंगे, हम शुरू कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, let's just start it anyhow। That's how I started Neera after my journey, and I know he still stalks me, so it's a best thing। He still stalks me now on okay, it feels good। And you should enjoy that also, you should enjoy your revenge part also। नहीं होता तो नीरा भी ना। नहीं होता तो शायद I would have got married or maybe kids, and that's also a beautiful journey, not denying that, but I was never one of those kids जिसको इतनी जल्दी चाहिए था। बट ओके, और अब ये हो रहा है तो इट इज अ गुड फीलिंग फॉर मी कि नाउ पीपल आर टॉकिंग, पीपल वांट्स टू टॉक टू मी, पीपल वांट्स टू शेयर देयर आइडियाज विद मी, पीपल आस्क मी फॉर हेल्प, गाइडेंस कैसे करना है, यू फील गुड। You have opened new doors. Yeah, hopefully, let's finger crossed, at least if I can inspire one another Lajja to get out of that mud and do something good for herself, then I'll be happy to do it। Yeah, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आपको नीरा नेचुरल्स को कहाँ पे? Neera Naturals for next 5 years should be an international brand, that's our Okay, अब इंडियन ब्रांड है। अभी इंडियन ब्रांड है, yes yes, pan India is available, you can go through our website portal and you can place your order directly from there। pan India तो अभी है, अभी मुझे जाना है इंटरनेशनल जाना है, बिकॉज टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट इन सब चीज़ों का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी वेस्ट में भी वो कल्चर धीरे धीरे होने लगा है, से ऑल्सो फॉलो स्पिरिचुअलिटी। एंड उनका नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा डाइवर्स हो चुके हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, दे आर रेडी टू पे बिकॉज दे फील कि ये सब चीज़ें अच्छी है, और वो ही इन सब चीज़ को उन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया। हमारे पास है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ये वो वाली बात है, बट वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, दे आर मच मोर इनटू इट। If Kama Ayurveda Bath and Body Works, and they are, Kama is an Ayurvedic brand, yeah, so they are using it, they are more inclined towards using natural things, so international market, yeah, that's hopefully it gets by next 5 years, that's what our plan is, and also to start a men grooming brand which would be under the name of Neera Naturals के label के अंदर ही आएगा, वो तो शायद इसी 4-5 महीने में हो जाएगा। नेचुरल मैन ऑर्गेनिक थिंग होगा वो, फॉर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेल्स। Means okay. So all the best for that. Thank you so much, so much pleasure।
So thanks a lot for this amazing podcast. थैंक यू। तो हमें आज बहुत कुछ जानने को मिला नीरा नेचुरल्स के बारे में और कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं विद स्पिरिचुअलिटी एंड द बेस्ट पार्ट वाज आई गेस द अवार्ड. Yeah, it's gonna be a one. It's the best thing in my life till now. Yeah. Thank you so much. Thank you.